students, I'm going to share the screen. You will see lot of things in the story. What I mention here, like as Mahatma Gandhi, Nelson Mandela was also popular in South Africa. He was called the father of South Africa. It is a story of that time when Mahatma Gandhi went to South Africa in order of a kiss. So now today let us see the story of Nelson Mandela. It is an autobiography. The name of his book is A Long Walk to Freedom. A Long Walk to Freedom is the name of a book written by Nelson Mandela. It is an autobiography. In this autobiography, you will see the part of Nelson Mandela. We can find a lot of things about Nelson Mandela. So let us see here. Now I am going to share the screen. Please wait here. Can you see everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nelson Mandela. Am I right? Long Yes. Walk to Freedom. You can see the down. Long Walk to Freedom is the name of a book. It is a biography, autobiography written by himself, Nelson Mandela. The full name of Nelson Mandela was Nelson Rohilla Mandela. It is the full name of Nelson Mandela. Now let's see here. 10th May, down bright and clear. 10th May, it was down bright and clear. Down, dusk to dawn. Dawn means morning. D-A-W-N-E-D. Dawn means morning. It was the time of morning. It was the 10th May. The sky was bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitary and world leader who were coming to pay their respect before the inauguration. Let us see here, children. It was the 10th May where the inauguration was going in South Africa. The day was very beautiful. The sky was very clear. Many dignitary matlab very important person, VIP, had come to see the inauguration of Nelson Mandela. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Means in South Africa, it was the first time when so many people had gathered here. आज तक साउथ अफ्रीका में इतनी ज्यादा संख्या में लोग नहीं आए थे जितनी ज्यादा संख्या में नेल्सन मंडेला को देखने के लिए लोग आए थे. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater. Do you know, children, amphitheater? Amphitheater is a open ground. It is open where large number of people could gathered here. यह एक खुला मैदान होता है जहां बहुत से ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हो सके. तो उनके सेरेमनी के समय में जिसमें ओथ हो रहा था, कह सकते हैं शपथ ग्रहण जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, शपथ ग्रहण के समय में ये जो शपथ ग्रहण का जो समय था ये खुले मैदान में हो रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां आए हुए थे. उस बिल्डिंग का नाम था प्रिटोरिया. For decades, this had been the seat of white supremacy. कहा कि इससे पहले यहाँ पर राज्य हुआ करता था. किसका राज हुआ करता था? व्हाइट पीपल का. For decades, this had been the seat of white supremacy. मतलब यहाँ सुपरमेसी किसकी चलती थी? पहले व्हाइट पीपल की चलती थी बेटा. And now
It was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Means it was the first time when in South Africa from the black community president has been elected here. कहा कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में यह पहला बार था जहां पर इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुए थे और इस चुनाव में नेल्सन मंडेला भारी मतों से जीत करके आए थे और उनका आज शपथ ग्रहण समारोह था। 10 मई को शपथ ग्रहण समारोह हो रहे थे। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब क्या होते हैं? मतलब है कि जात पात से ऊपर उठ करके, रंग से ऊपर उठ करके, क्योंकि वहां दो कलर थे, एक व्हाइट एंड ब्लैक, और जो नेल्सन मंडेला जी थे ये ब्लैक कम्युनिटी से होकर बिलोंग करते थे। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में यह पहला बार मौका था बेटा जहां पर कि ब्लैक कम्युनिटी से कोई प्रेसिडेंट बना था और उसमें में भी इलेक्शन के द्वारा चुनाव हुए थे और पहली बार यहाँ पर डेमोक्रेटिक, जैसे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक प्रजातंत्र देश है क्योंकि यहाँ पर चुनाव होते हैं, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में चुनाव कराए गए। अब इस चुनाव में नेल्सन मंडेला भारी मतों से चुने गए। तो आज वही दिन है, 10 तारीख है, 10 मई, जो कि दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में एक स्मरणीय दिन माना जाता है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जेनानी। उस शपथ ग्रहण समारोह में मेरे साथ थी मेरी बेटी जेनानी थी। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरी बेटी थी जिसका नाम जेनानी है। Remember it. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn as second deputy president. सबसे पहले जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ वह जो है किसका हुआ? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का हुआ। उपराष्ट्रपति, जब ये राष्ट्रपति वहां के इलेक्टेड किए गए नेल्सन मंडेला, तो एक एक करके सबका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले जो दूसरा उपराष्ट्रपति है उनका जो है वो ओथ ले रहे हैं, उनकी शपथ दिलाई जा रही है यहाँ पर। तो दो दो प्रेसिडेंट वहां चुने गए, उप प्रेसिडेंट चुने गए हैं। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से वहां दो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और सबसे पहले उपराष्ट्रपति की यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह चल रही है। देन थाबो मिबेकी, थाबो मिबेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। करा कि एक डिप्टी प्रेसिडेंट हो गए, एक और डिप्टी प्रेसिडेंट हो गए, माने उपराष्ट्रपति दो हो गए। इनकी शपथ ग्रहण की गई, इन्होंने ओथ लिया। When it was my turn, जब मेरा समय आया, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब मेरा बारी आया, जब मेरा टर्म आया, मैंने संविधान पर हाथ रख करके मैंने कसम खाया और मैंने अनाउंस किया, आई प्लेज, प्लेज मतलब ओथ, आई प्लेज टू ओबे। मैंने अपने स्पीच में जनता के सामने मैंने वादा किया कि मैं वो सब काम करूंगा जो जनता की भलाई के लिए अच्छा हो। डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। यहाँ की स्वतंत्रता के लिए जो अच्छी चीजें होंगी, जो जनता के लिए अच्छी बातें होंगी, मैं उसे फॉलो करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, कहा कि पूरे विश्व, ऑलमोस्ट as I mentioned here 140 कंट्रीज यहाँ आए हुए थे। उस जनता के सामने इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में कसम खाया कि मैं साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। I said today all of us do by our presence here confer glory and hope to new born liberty। इन्होंने अपने स्पीच में कहा न्यू वर्न लिबर्टी, न्यू वर्न लिबर्टी मतलब होते हैं अब यहाँ एक नई आजादी का जन्म हुआ है। नई आजादी का जन्म का मतलब ये होता है कि इससे पहले वहां पर कभी इलेक्शन नहीं हुए थे, चुनाव नहीं हुए थे। इट वाज द फर्स्ट टाइम वेयर इलेक्शन वाज हेल्ड एंड नेल्सन मंडेला वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम
यह पहली बार था जो साउथ अफ्रीका में गणतंत्र स्वतंत्रता की स्थापना की गई। तो अपने स्पीच में सभी जनता को ये एड्रेस कर रहे हैं और एड्रेस के क्रम में इन्होंने ये सारी बातें कही। क्या कहा इन्होंने? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज एक नई लिबर्टी का जन्म हुआ है, नए फ्रीडम का जन्म हुआ है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। करा कि इससे पहले करा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मन मनुष्य को जो मानवता था उसको जो है नुकसान करने के लिए करा कि इससे पहले जिसका शासन था उन्होंने मानवता को कुचल के रख दिया, उसका ध्यान नहीं रखा। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। पूरे समाज को, पूरे मानव सभ्यता को प्राउड होना चाहिए कि आज दक्षिण अफ्रीका में नई जन्म हुई है, नई लिबर्टी की स्थापना हो रही है। We who were outlaw not so long ago, we who were outlaw, try to understand the meaning here everyone please. We who were outlaw का मतलब ये है बेटा कि आज से पहले साउथ अफ्रीका की कोई वैल्यू नहीं थी। We who were outlaw and so long and not so long, अब वो दिन नहीं, अब ज्यादा दिन तक हम आउटलॉ नहीं हो सकते हैं। मतलब विश्व के मानस पटल पर हमारी कोई वैल्यू नहीं थी कंट्री की, लेकिन आज सौभाग्यशाली हैं हम और हमारा देश। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज मेरी अपनी ही धरती पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आज से पहले जो हम आउटलॉ हो गए थे, जहां कोई वैल्यू नहीं थी हमारी कंट्री की, आज वो सारे लोग आकर के हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हमारे देश की मान बढ़ा रहे हैं। जो कि व्हाइट जो पीपल थे, जो अंग्रेज लोग जब शासन करते थे, गोरे लोग, तो इस देश की वैल्यू कुछ भी नहीं थी। लेकिन आज वो दिन आ गया जो पूरे विश्व के लोग इसे एक मान और सम्मान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what each। मैं उन सभी देशवासियों को और बाहर से आए हुए सभी देशवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। We thank all of our distinguished international guests। distinguished मतलब कि अलग अलग देशों से आए हुए जितने भी वीआईपी लीडर हैं, उन सबको मैं स्वागत करता हूँ अपने कंट्री में। Of what is after all a common victory for justice। आज न्याय की जीत हुई है। For peace, for human dignity। करा कि शांति के लिए, मानव के उत्थान के लिए आज एक न्याय की स्थापना हुई है, आज न्याय की जीत हुई है। We have at last achieved our political emancipation। करा कि आज हमने वो सारा चीज प्राप्त कर लिया जो इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने खोया था। मतलब कि आज से पहले दक्षिण अफ्रीका की जो कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज पूरे कंट्री के लोग इसे वैल्यू दे रहे हैं। इसलिए नेल्सन मंडेला ने कहा कि वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इम्पैसिपेशन। इम्पैसिपेशन इज गिवन हियर मींस फ्रीडम फॉर रिस्ट्रिक्शन। कहा कि आज से पहले हमारे कंट्री में बाहर आना जाना या ब्लैक लोगों को आना जाना जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, आज वो सब कुछ दूर हो गया। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations। कहा कि आज से मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने देश की गरीबी को, जो छुआछूत का भेदभाव है, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, इसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। नेल्सन मंडेला ने जनता के सामने ये वादा किया कि हमारे कंट्री में आज तक जो जात पात का भेदभाव था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक
और व्हाइट का वहां भेदभाव था, गोरे काले का भेदभाव था। उन्होंने कसम खाया कि आज से इस कंट्री में ये सब नहीं चलेगा। जात के आधार पर, लिंग के आधार पर या वर्ण के आधार पर ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेवर, नेवर एंड नेवर, कभी नहीं और कभी नहीं। अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। आज के बाद कभी नहीं और कभी नहीं इस देश में एक व्यक्ति दूसरे को पर राज करेगा, मतलब कोई सताएगा नहीं। ऑपरेशन मतलब होते हैं, मतलब बैडली रूल्ड, करा कि कोई बुरी तरह से अब यहाँ शासन नहीं कर सकता है। The sun shall never set on so glorious a human achievement। करा कि आज जो सूर्य, मतलब जी की सूर्य है, आज वो इसका आई विटनेस है। सूर्य भी आई विटनेस है, वो सब देख रहे हैं। अब इस कंट्री में कभी भी वो दिन देखने को नहीं मिलेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब सूर्य भी नहीं रोक सकते हैं इस कंट्री को आगे बढ़ने से। अब यहाँ भी सूर्योदय होगा, मतलब यहाँ भी अब विकास का काम होगा। लेट फ्रीडम रियन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। करा कि इस आजादी का लुत्फ उठाया जाए। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका पर ईश्वर कृपा करे कि इस प्रकार से अफ्रीका विश्व के मानस पटल पर रात दिन विकास करता जाए। It was the speech by Nelson Mandela on the day of 10th May when he was going to take a oath as a president। आज नेल्सन मंडेला 10 मई को, जिसे हम वहां ऑटमन डे के नाम से जानते हैं। ऑटमन डे मतलब इसलिए कहते हैं ऑटमन डे क्योंकि ऑटमन में क्या होता है, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में जिस प्रकार से चारों तरफ पेड़ पौधों में नए नए पत्ते खिल जाते हैं, फूल लग जाते हैं, एक वातावरण में खुशी के माहौल हो जाते हैं, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका के इतिहास में वो दिन स्मरणीय रहेगा कि आज के दिन कोई फर्स्ट ब्लैक कम्युनिटी से प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लिया है। तो इस प्रकार से साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो 10 मई है वो वहां के लिए एक ऑटमन डे के रूप में रखा गया। तो इट वाज द स्पीच गिवन बाय नेल्सन मंडेला ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। यह उनका स्पीच था जो हमने पढ़ के आपको सुनाया कि उन्होंने जनता से क्या क्या प्रॉमिस किया है। इट वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट। A few moments later, कुछ ही समय के बाद, उनका तो इनॉग्रेशन हो गया, उन्होंने स्पीच भी दे दिया। उसके बाद a few moments later we all lifted our eye in awe as a spectacular area of South Africa jets, helicopter and troop carrier roar in perfect formation over the Union building। जब वहां की जनता बैठी हुई थी शपथ ग्रहण समारोह में, जैसे ही उनका स्पीच खत्म हुआ, आकाश में चारों तरफ से हेलीकॉप्टर, जहाज, सेना चारों तरफ से वो नीचे उतरने लगे। फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहे थे, अचानक चारों तरफ से हेलीकॉप्टर, जहाज, सेना, तीनों सेना की टुकड़ी वहां पर आ गए, इकट्ठे हो गए। क्यों इकट्ठे हो गए? उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए। जैसा कि हमारे कंट्री में आपको पता है, जब ये शपथ ग्रहण समारोह होता है राष्ट्रपति जी का, तो तीनों सेनाएं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो आते हैं और सलामी देते हैं। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी यही काम होने जा रहा है उनकी स्पीच के बाद। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। करा कि आज केवल एक परेड मात्र ही नहीं था, बल्कि सेना के तीनों टुकड़ी जो है इन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में कोई ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुआ है, इन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए तीनों सेनाएं आगे आ रही हैं। Only moments before
the highest general of the South African Defense Force and Police। करा कि जो highest general post मतलब जो सेनापति होते हैं, हेड होते हैं, तीनों सेना के अलग अलग होते हैं ना, एयर फोर्स है, तो आर्मी है, तो फिर जो है नेवी होते हैं, तो तीनों सेना के जो सेनापति है वो आगे आ रहे हैं इन्हें सलामी देने के लिए। highest general of the South Africa Defense Force and Police, their chest bedecked with a ribbon and medals from day gone by, saluted me। कहा कि वो जो तीनों सेना के सेनापति थे उनके मेडल लगे हुए थे। आपको तो पता है सेना के सेनापति जो हेड होते हैं उनके जो बैचेज होते हैं, जो एक स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो उनकी स्पेशल बैच लगे हुए होते हैं, रिबन लगे हुए होते हैं। उन्होंने सैल्यूट किया, सैल्यूटेड मी कौन यहाँ है? नेल्सन मंडेला जी। उनको उन्होंने सैल्यूट किया। जो तीनों सेनाएं हैं उन्होंने क्या किया? उन्हें सैल्यूट किया। saluted me and pledged their loyalty। और अपने एक नतमस्तक होकर मतलब सिर झुका करके उन्होंने उनका अभिवादन किया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। नेल्सन मंडेला एक घटना सुना रहे हैं, एक कहानी कि आज से पहले यही सेना के सेनापति और पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया था। मैं वो दिन भूला नहीं हूं। ये जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, इन्होंने लड़ाई के क्रम में जब मैं व्हाइट पीपल के साथ में मैं लड़ाई लड़ रहा था, तो यही सेना के सेनापति और पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted। कुछ साल पहले की तो बात है, वे मेरे को सैल्यूट नहीं किए, बट अरेस्टेड मी। उन्होंने क्या किए थे? मुझे अरेस्ट कर दिए थे। फाइनली अ चिवर्न ऑफ इम्पाला jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। करा कि एक हेलीकॉप्टर आता है, उस पर जो उस देश का जो राष्ट्रीय झंडा होता है वो लहराया जाता है। उस देश के कंट्री का जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसमें इतने सारे कलर देखे जाते हैं। ब्लैक होते हैं, रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं, गोल्ड होते हैं। जबकि हमारे कंट्री का जो फ्लैग होते हैं, तिरंगा, उसमें 3 कलर होते हैं। लेकिन यहाँ के जो राष्ट्र ध्वज होते हैं वहां इतने सारे कलर उस झंडे में देखने को मिला। The day was symbolized for me by the playing of our 2 national anthem। कहा कि इसके बाद जब झंडा जो है फहराया गया, वहां पर राष्ट्र ध्वज हुआ, उसके बाद नेशनल एंथम गाया गया। ये तो हमारे कंट्री में भी होता है, इंडिया में भी होता है, वहां भी सेम हो रहा है। नेशनल एंथम गाया गया वहां पर। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम गाए गए बेटा। हमारे कंट्री में तो एक नेशनल एंथम होते हैं, वहां 2 नेशनल एंथम गाए गए। क्यों 2 गाए गए? आप देखेंगे, एक ब्लैक के लिए और एक व्हाइट पीपल के लिए। क्योंकि नेल्सन मंडेला एक ऐसे पर्सन थे जो नहीं चाहते थे कि व्हाइट के जो लोग हैं वो किसी भी बात का बुरा माने। क्योंकि आज से 300 वर्षों तक उन्होंने ही राज किया था, व्हाइट लोगों ने। इसलिए नेल्सन मंडेला ने सोचा कि नहीं, दोनों के झंडे यहाँ, दोनों के गीत गाए जाए, जिससे उनका भी सम्मान होगा और ब्लैक लोगों को भी सम्मान मिलेगा। And the vision of white singing नोकोसी सिकिले आया जरका, मतलब ये गीत का बोल है। ये जैसे हमारे क्या होते हैं ना, जनगण मन होते हैं, उसी प्रकार से ये इनके कुछ एक दिया हुआ है। नकोसी सिकिले आया अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग का क्या गाया गया? डिस्टेम। करा कि दोनों के अलग अलग नेशनल एंथम वहां पर गाए गए।
the old anthem of the republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, the ones despise they would soon know the words by heart. हालांकि ब्लैक वाले व्हाइट की नेशनल एंथम को नहीं गा पा रहे थे सही से, और व्हाइट वाले ब्लैक के जो नेशनल एंथम थे उसे सही से नहीं गा पा रहे थे। मैं उनका जो लय था वो सही से नहीं हो रहा था, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में दिल में काफी प्रेम था, ये देखने को मिला। भले उन्हें गाने नहीं आते थे एक दूसरे के गीत को, लेकिन दोनों को एक दूसरे के प्रति दिल में काफी प्रेम और काफी रिस्पेक्ट और ऑनर था। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. कहा कि मैं काफी खुश था। On the day of inauguration, I was overwhelmed. Overwhelmed मतलब कि बहुत ज्यादा संख्या में, मैंने कोई प्रेशर होता हो, काफी संख्या में मैं खुश था। With a sense of history, क्योंकि इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, कहा कि मेरे जन्म से कुछ ही दिन पहले वहां पर साउथ अफ्रीका में एक वार हुआ था एंग्लो और बोर के बीच में। अब ये थोड़ी कहानी सुना रहे हैं नेल्सन मंडेला जी। वो कह रहे हैं कि मेरे जन्म के कुछ ही दिन पहले वहां पर सबसे पहले युद्ध हुआ था एंग्लो और बोर के बीच में। On birth, the white skinned people of South Africa patch up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. करा उसी समय से साउथ अफ्रीका में व्हाइट और ब्लैक के बीच जो है ये भेदभाव जो था वो बढ़ता चला गया। मतलब नेल्सन मंडेला याद दिला रहे हैं लोगों को कि साउथ अफ्रीका में ये जो विवाद था व्हाइट और ब्लैक के बीच में कब से फैला, तो वो कह रहे हैं मेरे जन्म से ठीक पहले एक युद्ध हुआ था वहां एंग्लो बोर के बीच में। इस युद्ध के बाद से ही साउथ अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट के बीच में ये जो है युद्ध चलने लगा था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हाफ सीट मोस्ट इनह्यूमन। करा कि ये शासन कैसा था, ये बहुत ही कठोर था, इनह्यूमन था, माने ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, इतिहास उसे याद करके जो है काफी पश्चाताप करता है कि इतिहास में यह दिन कितने कठिन थे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one. आज ये समय अब जा चुका था। ओवरटर्न फॉरएवर माने सदा सदा के लिए वो जो दिन अब जा चुका था जहां पर व्हाइट का ब्लैक के ऊपर रूलिंग हो रहा था, अब वो समय समाप्त हो गया। मतलब इसलिए ये इतिहास का बहुत बड़ा दिन था साउथ अफ्रीका के लिए। The day had come about through the unimaginable overturned forever and replaced by on that recognize the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। कहा कि अब कलर के आधार पर नहीं बल्कि एक मानवता के आधार पर वहां शासन हो रहे थे। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। कहा कि मेरे हजारों लोग जो है वो मारे गए थे। मतलब इस आजादी में ये दिन प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ने कहा हजारों लोगों ने अपने बलि दे दी थी। People whose suffering and courage can never be counted or repaid। आज वो स्पीच में ये भी कह रहे हैं कि जितने लोगों ने बलिदान दिया आज उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है, वो पे नहीं कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने इस आजादी के लिए अपने आहुति दे दी,
मैं वो उसे जिंदगी भर कभी भुला नहीं सकता हूँ। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं आज उन सबको सलाम करता हूँ, उस देशभक्त को जिन्होंने इस दिन को लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। That long and noble line ended and now began again with me। आज वो लाइन समाप्त हो गया। आज से इस देश में नए संस्कृति, नए कल्चर का जन्म हुआ। I was pained। मैं काफी दुखी था। That I was not able to thank them। मैं काफी दुखी था कि वो लोग जिन्होंने मुझे इस गद्दी पर बैठाने का काम किए, वो आज मेरे सामने नहीं हैं। And that they were not able to see what their sacrifices had wrought। आज मैं दुखी हूं कि जिन्होंने मुझे गद्दी पे बैठाया, आज वो यहाँ नहीं है। वो बेचारे सभी मारे गए। इसलिए मैं काफी आहत हूं। मैं दुखी हूं कि उनको मैं धन्यवाद तक नहीं दे पा रहा हूं, जिन्होंने मुझे गद्दी पर बैठाया। देखो नेल्सन मंडेला कितने अच्छे से एक एक जनता के बारे में अच्छी तरह से वो स्पीच में सबको बता रहे हैं। जिन्होंने जान की बलि दे दी, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं काफी दुखी हूं कि उनको मैं धन्यवाद तक नहीं दे सकता हूं, जिन्होंने मुझे इस गद्दी पर बैठाने का काम किया। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। कहा कि ये जो पॉलिसी थी अपार्थेड की, अपार्थेड क्या होता है बेटा? अपार्थेड वो व्यवस्था है, वो पॉलिसी है जहां पर स्किन के आधार पर, कलर के आधार पर राज्य किया जाता है। कहा कि ये जो अधीन था वो हमारे देश के लिए घाव था। wound in my country and my people। मेरे लोगों के लिए और मेरे देश के लिए एक घाव के समान था। all of us will spend many years। हम लोगों ने बहुत दिन बिताए। if not generation recovering from that profound hurt, but the decade of oppression and brutally had another unintended effect, and that why that it produced the Oliver Tamboj, the Water Sissour, the Chief Lotkil, the Yusuf Dado, the Bran Fincher, the Robert Soliloquy of our time, men of such extraordinary। आज उन सबको जिन्होंने इनके आजादी में योगदान किया, उनको एक एक व्यक्ति को नाम ले लेकर के ये जो है याद कर रहे हैं। और यही सारे लोग जो हैं इन्हें गद्दी पे बैठाने का काम किया। courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। कहा कि आज के बाद शायद ही ये दिन इनको देखने को मिलेगा। मतलब आज ये जब अच्छे दिन आए तो ये लोग देखने के लिए नहीं है। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। My country is rich in the mineral and जेम्स दैट लाई बीनीथ द सॉइल। आप बता रहे हैं कि हमारे कंट्री में क्या क्या है, किस प्रकार से साउथ अफ्रीका धनी देश है, ये बताने का काम कर रहे हैं। माय कंट्री इज रिच इन द मिनरल। मेरा जो देश है वो धनी है। किस मामले में धनी है? मिनरल के रूप में। मिनरल मतलब माइंस। यहाँ अच्छे अच्छे खदान हैं, अच्छे अच्छे जो है धरती के अंदर में जैसे कोल होते हैं, कोयले होते